What we were discussing, the seagull had two brothers and one little sister. His two brothers and little sister had yesterday flown away, but he was a slow learner. There are two types of learners, fast learner and slow learner, and he was a coward. He was timid seagull, and for the fear of his life, he was not able to take his flight. He was very coward, बहुत डरपोक था. And you know that parents adopt many methods to make their children independent. Parents don't want that their children should be dependent on the parents. They don't want. What do the parents want? The parents want that the children should be independent. Children should stand on their own feet. हाँ, म्यूट कर लो. जब जरूरत हो तब अनम्यूट करना और पूछना. Everyone mute. Everyone mute. Now I start page number 35. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. When he was enjoying the flight, he forgot that he had ever been afraid to fly. वह कभी उड़ने के लिए डरा हुआ रहता था, इस बात को भूल गया वो. When he was enjoying his first flight, he forgot that he had ever been afraid to fly. वह कभी उड़ने के लिए डरा हुआ रहता था, इस बात को भूल गया. Now he was enjoying. His one leg was higher than the second leg. And commended himself. He praised himself. अपने आप को उसने, कुछ लोग होते हैं ना अपने आप से अपना पीठ ठोकते हैं. वो अपने आप को शाबाशी दे रहा था. To dive. This time he was diving into the air and soaring. Soaring means flying and curving. He was making the curving movement in the air. Curving and shrieking. He was shouting shrilly in a sharp voice. You must have seen some youngsters when they learn to drive their bike. They shout, and sometimes they leave their hands also, and sometimes they adjust their hair, they show their style. In this way, the young seagull was also shrieking, shouting sharply, shrilly, and he was soaring and curving and diving. Now he was going on the surface of the sea. And you know that you must have seen there are two types of seas, and the color of the sea is of two types. You must have seen the color of the sea, sometimes blue and sometimes green. And that was the green sea. Okay? Water was green. He was near the sea now. From the cliff, from the rock, okay, from the cliff, from the rock, where he had the ledge, you know, जहाँ पर वो रहता था, and on the ledge there was a hole. In that hole, the seagull family lived. But all the family members, father, mother, two brothers, little sister, everyone had taken the flight, but he was timid, he was staying there. Now the sea was miles down. He was thinking that if he takes the flight and his wings don't support him, then he would fall down into the sea and he will die. But you know that God has given the gift to birds. When the birds take the flight, very automatically his wings are spread. What is the third form of spread? Can you say me? Yes, spread. When a bird's wings are spread very naturally, the wings cut the air
and he was able to take his first flight. He was now soaring, diving and curving movement in the air. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब ocean के बिल्कुल नजदीक आ गया था, but he had not learnt yet how to skim above the surface of water. How to skim? Do you know what is the word skim? To move lightly. पेरेंट्स सिखाते हैं कि वाटर के सरफेस पर कैसे मूवमेंट करना है, और वो नहीं सिखाएंगे तो as soon a bird puts his leg into the water, surface of water, he will drop, he will sink. तो पेरेंट्स सिखाते हैं कि कैसे फ्लोरिंग पर खड़े रहना है विदाउट सिंकिंग. तो उसने तो सीखा नहीं था, उसके ब्रदर्स ने सीखा था, लिटिल सिस्टर ने सीख लिया था. दे वर फास्ट लर्नर्स. अब वो आगे हैं. Straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath him with little ridges, with little waves moving over it. Now thin layers of water were moving with the gust of wind, with the blowing of wind, and he turned his beak sideways. दोनों तरफ अपने beak को वो जो है टर्न कर रहा है ना. क्यों कर रहा है? एंजॉय कर रहा है. When a youngster drives his bike very far, आप देखते होंगे बहुत स्टाइल से अपना बाल को सेट करता है, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखता है. So this is the same style the seagull was taking the flight, and he was turning his beak sideways and caught. He was making sound amusedly, happily, and he forgot that he had ever been afraid to fly. Ever means कभी. वो कभी डरा हुआ रहता था, इस बात को वो भूल गया. His parents and his brothers and all the whole family was giving mental and moral support. इस वर्ड को मैं कल भी रिपीट किया था, आज भी रिपीट कर रहा हूँ. इस वर्ड को आप ध्यान देंगे. The whole family was giving mental and moral support to the children. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring. Green flooring means green floor of water. जैसे हम लोग का घर में फ्लोर होता है तो चिड़ियों के लिए वाटर ही फ्लोर होता है. एंड व्हाट वाज द कलर ऑफ वाटर? ग्रीन. सो फ्लोरिंग वाज आल्सो ग्रीन अहेड ऑफ हिम. वो उसके आगे आगे वो दिखाना चाहते थे कि देखो हम ग्रीन फ्लोरिंग पर जब लैंड करते हैं देन वी डोंट सिंक, we don't drown, and this is how you have to also land on the green flooring. You will also not drown, you will also not sink. Okay, so this is why the whole family had come ahead of him. उससे आगे आगे आ रहे थे. उसको रास्ता, वो लोग दुश्मन नहीं थे. जब वो डांटते थे तो उसको लगता हो कि मेरे सारे दुश्मन हैं. दुश्मन कोई नहीं था. What do they want? All the family members want that he is a bird and he must learn what he must learn. What he must learn? Flight. No, how to fly. Yes, उसको सीखना ही चाहिए. And they were beckoning to him. They were giving signals. Come down, land on the green flooring. You will not sink, you will not drown. Calling shrilly, calling in a sharp voice. He dropped his legs. जब उस सब ने बिकॉन किया, उसको सिग्नल दिया कि आ जाओ, तो उसने भी अपने पाँव को जो है उसने रखा to stand on the green sea. But he had not learnt the art of skimming. Okay? What is skimming? To move lightly on the floor of water, above the surface of water. ठीक है? आप देखेंगे पहले के पेज वर्ड मीनिंग दिया हुआ है. इससे क्वेश्चन आएगा आपको सेकंड फोर्टनाइट में. आपने रिजल्ट देख लिया क्या? हैव यू सीन योर रिजल्ट? रिजल्ट आपने देखा? ठीक है. तो वेरी गुड. तो उसने अपने पाँव को जो है ड्रॉप किया टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. लेकिन उसने तो सीखा नहीं था. दो बात सीगल ने नहीं सीखी थी. किस सीगल ने? वी आर फोकसिंग ऑन द यंग सीगल. दो बात नहीं सीखी थी. ही हैड नॉट लर्नड द आर्ट ऑफ फ्लाइट.
number one, and he had not learned the art of skimming above the surface of water. Okay. तो जैसे उसने पांव रखे, his legs sank into it, उसके पांव डूब गए। और जैसे डूब, एक तो बेचारा दिन भर का भूखा था, एक दिन पहले से किसी ने उसको भोजन नहीं दिया था, सबने इग्नोर कर दिया था, बैकआउट कर दिया था उसका, कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसको खाना नहीं देगा। अगर इसको खाना हो तो स्वयं ये आएगा, then we will provide him the fish. He screamed with fright, वो चिल्लाया, he cried with fear, सोचा करे अब तो हम डूब जाएंगे, पूरा षड्यंत्र है मेरा फैमिली का हमको मार देने का। एक बार तो मेरी माँ ने एकदम मुझे ललचाया, my mother tempted me with a piece of fish, and when I dived at the piece of fish, my mother came to one side and I fell downwards and outwards. मैं नीचे गिर गया। ये मेरी माँ नहीं हो सकती है, she must be my step mother, but she was real mother. What did she want? She wanted to perfect him in the art of flight. This is the duty of the parents, how to make their children what? Independent, so that he may survive in this cruel world. You know, this world is cruel. ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, हमको सिंपैथी मिलता है, दूसरों से प्यार मिलता है, लेकिन कहीं भी आपको पता चलेगा मेरा पड़ोसी जो है अभी कोरोना वायरस से वो जो इन्फेक्टेड हो गया है, तो उधर से आप जाना बंद कर देते हैं, आप उधर हेल्प देना बंद कर देते हैं। इसलिए ये सेल्फिश सोसाइटी है, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। He screamed with fright and attempted to rise again. फिर से उठने का प्रयास किया, flapping his wings. एक बात उसको पता चल गया था कि when you will be in the danger, you must flap your wing. And when you flap your wing, you will move upwards. You will soar upwards. ये उसको पता था, तो अपना फ्लैपिंग किया विंग्स को, but he was tired एंड वीक विथ हंगर। दो प्रॉब्लम था, एक तो 24 घंटे से खाना नहीं खाया था, इसके बाद स्ट्रेंज एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने एक्सरसाइज किया था। मान लीजिए आप घर में रहते हैं, एक दिन नहीं आपका मर्द नहीं, आप दौड़ेंगे, एकदम फिजिकल फिटनेस मेंटेन करेंगे। आप सुबह उठते हैं और जोश में जो है आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, और फिर दूसरे दिन क्या होता है, आपके पाँव में बहुत सुंदर सुंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या? इसलिए प्रैक्टिस जब भी हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली। उस बच्चे ने वो एंजॉय किया था फ्लाइट को, खूब उड़ा वो, तो एक तो वो टायर्ड हो गया था और उस पर भी वो क्या था, वो भूखा था। He was weak with hunger and he could not rise. वो ग्रीन फ्लोरिंग से नहीं उठ सका। Exhausted, he was tired by the strange exercise of flight. First flight, his feet sank into the green sea. उसके पाँव, दोनों पाँव धंस गए, and then his belly touched it. जैसे ही उसके पाँव धंस गए, उसका बेली टच किया the surface of water. और जैसे ही बेली टच किया, एयर में क्या हुआ था, his wings automatically spread and his wings started cutting the air, उड़ने लगा। और वाटर में क्या हुआ, जैसे बेली टच करता सरफेस ऑफ वाटर को, now he was not sinking further, अब वो नीचे नहीं डूब रहा। This also happens with animals. अगर गॉड ने ह्यूमन बींग्स को बुद्धि दिया है तो उसको ये तैरना नहीं सिखाया, तुम तैरो, वो जब जाए तैरेगा नहीं तो पानी में डूब जाएगा। लेकिन वो भगवान जानते हैं कि एनिमल और बर्ड को ये हमको गॉड गिफ्टेड नेचुरल थिंग हमको देना पड़ेगा। Then his belly touched it and he sank no farther, अब वो नीचे नहीं डूब रहा था। तो उसको सपोर्ट किसने किया, एयर में उसके विंग्स ने, और वाटर में कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका बेली। ठीक है, he was floating on it, वो उस पर तैर रहा था। and around him his family was screaming, चारों तरफ से उसके all the family member circling around him and they were celebrating victory. And you remember one thing, the one day before what had happened, elder brother had caught his first herring. Do you recall? याद है आपको? Elder brother had caught his first herring. What do you know about first herring? Herring means soft finned fish, जिसके फिन जो है, उसके पर जो है बहुत मुलायम होते हैं।
वो उसका पहला शिकार था। सारे फैमिली मेंबर्स उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड दिस हैपन सेम विथ द यंग सीगल। सभी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। हाँ, यू हैव लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइट। चारों तरफ से घेर लिए थे। यस, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, दुख से चिल्ला रहे थे। द फैमिली वाज स्क्रीमिंग विथ सॉरो और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, यस, दे वर सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसके फर्स्ट फ्लाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे। प्रेजिंग हिम, हाँ, कैसे प्रेज करके? ताली बार करके, क्लैपिंग करके नहीं, कैसे? विथ कॉइंग। यस, क्लैपिंग वो कहाँ से क्लैप कर पाएगा? हम लोग के साथ करतल ध्वनि थोड़ा सिखाया। वो करतल ध्वनि प्रकार 1 करो और प्रकार 2 करो। विथ कॉइंग, मेकिंग नॉइज, एंड देयर बिग्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। सभी लोगों ने डॉग फिश पकड़ा था। डॉग फिश एक काइंड ऑफ सी फिश पकड़ के रखा था। सभी उसको ऑफर कर रहे थे, लो ये तो मेरे तरफ से प्राइज रहा है ना। अभी देखिए 12 का रिजल्ट निकला है, सबके पेरेंट्स गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। संजोग से एक बेटा मेरा भी 95.2 हुआ है और वो तिवारी आचार्य जी का बेटा 96% जो है वो स्कूल टॉपर रहा है ना। आप लोग को न्यूज़ मालूम हुआ होगा। यस, हाँ, 96% आनंद माधव और यशवंत किशन 95.2% सेकेंड टॉपर। तो बच्चे डिमांड नहीं करते कि हमको गिफ्ट चाहिए। वो पेरेंट्स अपने उसको प्रेज करने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए बोलते हैं कुछ गिफ्ट दें। आप हम लोग को हमको सुझाव दीजिए कि क्या गिफ्ट दें यशवंत भैया को। वो नहीं बोलता कुछ। All the time he is satisfied. Okay. And their bigs were offering him scraps of dog fish. Scraps means pieces of dog fish. He had made his first flight. And in this way, the seagull learnt how to fly. And he had made his first flight. In this way, the lesson is completed. If you have not understood, you will go through the lesson. ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग मैंने पिछले दिन भी लिखाया था। उस दिन तो नेटवर्क बहुत कमज़ोर था। आज हमको लगता है कि वर्ड्स विजिबल है। कल तो बहुत पुअर नेटवर्क था। एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। सबके पास बुक है ना? एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे कैसे उसको हम आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ही 50% आंसर छिपा हुआ रहता है। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। पहले इसको डील करते हैं। वाई को छोड़ देंगे, WH को, हेल्पिंग वर्ब को भी छोड़ देंगे। पहले हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे, द यंग सीगल। क्या? द यंग सीगल को ला करके इसका हम लोग क्या करते हैं? फाइनाइट वर्ब को भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। इसलिए पहले सब्जेक्ट दें और इसके बाद वर्ब दें आंसर में। और क्वेश्चन में क्या होता है? वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। नाउ स्टार्ट द आंसर। द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। डिस्कस करते हैं क्या? टाइम तो हो गया है। फोटो लिया था।
would never support him. यहाँ पर will का भी यूज हो सकता था अगर यहाँ is रहता, क्या, राइट? अब सेकेंड पार्ट है, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? अब इसका भी आंसर छिपा है क्वेश्चन में, हम लोग शुरू करेंगे, ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड to make their first flight for the first time. पहली बार कोई भी काम हम लोग करते हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं स्लो लर्नर के लिए। और कुछ जो लोग होते हैं एनर्जेटिक पर्सन, मतलब नहीं नया चीज़ है, वो सीखते हैं दुगुना उत्साह से, तो वो फास्ट लर्नर होते हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट है, आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स, बट सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स। But some birds are more timid than others. अब देखिए, ये अदर्स में टू ब्रदर्स आ गया, लिटिल सिस्टर आ गया, लेकिन ये क्या था, वो टिमिड था, डरपोक था। Because the young seagull was slow learner. अब एक पार्ट और है, डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड्स इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? हाँ, ह्यूमन बेबी, हम लोग का जो बच्चा होता है घर का, जब वो अपना पहला कदम लेता है तो वो झिझकता है, गिरता है, कई बार हम लोग इनकरेज करते हैं, कभी अपना फिंगर देते हैं सपोर्ट करने के लिए, है ना, like a young bird a human baby also finds it a challenge to take its first steps. अब आप देखिए क्वेश्चन में इट्स है ना, इट्स आप देख रहे हैं, इट्स देख रहे हैं, हाँ, क्यों आया, क्योंकि ह्यूमन बेबी बहुत इन्फेंट है ना, वो छोटा है, अबोध बच्चा है। मॉडर्न ग्रामर में पहले क्या होता था, जो ह्यूमन के लिए ही का यूज होता था, मैस्कुलिन के लिए, फेमिनिन के लिए सी, फिर बाद में जितने भी एनिमल है सबके लिए ईट, फिर चेंज हुआ कि नहीं, जो बड़े जो एनिमल हैं, लायन है तो उसके लिए जो है वो ही का यूज होगा, लायनेस है तो सी का यूज होगा। अब है कि जितने बड़े छोटे जितने भी एनिमल है सबके लिए ही और सी का यूज होगा, केवल इंसेक्ट्स के लिए यूज होगा इट का, ठीक है। अब ह्यूमन में भी चूँकि बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पर इट्स का यूज हुआ। तो हम अपने घर में देखते हैं ह्यूमन बेबी भी जब अपना पहला कदम जब लेता है तो उसके लिए चला जाता, कई बार गिरता है, रोता है, नहीं चले तब आप टॉफ़ी देते हैं, बिस्किट देते हैं, बहुत ऐसे इनक्रेज करते हैं, ये बाबू लोग खिलौना लो। This is seen in his shaking legs. उसके पाँव थरथराते हैं, as he tumbles, जब वो लड़खड़ाते हुए चलता है। ओके,
तो दिस इज हाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डेल्ट। और आपने देखा कैसे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, इसलिए मैं खास करके इस क्वेश्चन को लिखा। लेकिन मेरे व्यू से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन जब देखा तो वो भूख से पागल हो गया। और नाउ ही वाज रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यू हैव टू आंसर 2 and 3, 4, 5 आपको नहीं करना है, ये केवल डिस्कशन के लिए है। HW, राइट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 + 3। आपकी कॉपी तो मैंने चेक कर दिया है, लेकिन अभी आप तो ला नहीं पाएंगे। तो ओके, नेक्स्ट डे, ठीक है ना। कल 15 है, 16 को एग्ज़ाम है। कल भी कुछ लेसन हम आगे बढ़ाते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, एनी प्रॉब्लम? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस लेसन से रिगार्डिंग, तो यू मे आस्क इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।